This video is for the range of the functions, chapter number 2. Next topic. Range means you need the value of the functions. First, you should know the meanings. What is range? The range implies the value of f of x. The range means you have to note it, you have to find out the values of the functions in its domain. Normally we use one particular method to find out the range. Like if I take question number 1, first let me call f of x is equal to y, mean x minus 2 divided by 3 minus x. Although I am not asking the domain, but the domain is very clear that x should not be equal to 3. Here I may write x is not equal to 3, this is your domain. Next step is express x in terms of y. Again I have given two methods, one is your cross multiplication, another is your component and dividendo. So it means 3y minus xy is equal to x minus 2. Collect the terms of x on one side and rest of the terms on other side. So this implies x is equal to 3y minus 2 upon y plus 1. X is defined only if y is not equal to minus 1. वही डोमेन वाला स्टेप्स हम लोग लगा लेते हैं. Mean this x will be defined when y is not equal to minus 1. So this implies the range of this function belongs to real number r minus 1. इट मीन इसमें डोमेन कोई भी रियल नंबर आर हो सकता है बट माइनस 1 नहीं हो सकता. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f of x is equal to 1 by under root of x minus 5. फॉर डोमेन x 5 नहीं होना चाहिए और x minus 5 greater than 0 होना चाहिए. Is it clear? Now this implies under x minus 5 under root of this will be greater than 0. जब आप x की वैल्यू 5 से बड़ा लेंगे तो x minus 5 यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. बिकॉज यहां से डोमेन क्लियर है. डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी. फॉर ऑल x ग्रेटर देन 5 दिस इंप्लाइज x माइनस 5 इज पॉजिटिव. स्टेप को काट ही देते हैं. तो दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 भी पॉजिटिव होगा. जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे पॉजिटिव नंबर का तो वो भी पॉजिटिव होगा. It means range of this belongs to 0 to infinity. देखिए किसी पॉजिटिव नंबर का जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो वो भी पॉजिटिव होता है, ये ध्यान में रख लेना. मैंने रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड नहीं किया, मैंने सिर्फ इस टर्म का रेसिप्रोकल किया. If I take question number 3, f of x is equal to अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहां पे कहेंगे अगर मैं इसको लेट y कर देता हूं इज अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर व्हाट विल बी कॉल्ड? दिस इंप्लाइज स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड
express x in terms of y, this implies x will be equal to under root of 16 minus y square. This x is defined only if 16 minus y square is greater than equal to 0. 16 minus y square is less than and equal to 0. Y square minus 16 is less than equal to 0. So y belongs to minus 4 and 4. But y is greater than equal to 0. y आपको पॉजिटिव दिया हुआ है. तो this implies y will belongs to 0 to 4. तो range of this question y belongs to close interval 0 to 4. यही इसकी रेंज आएगी. आप कहेंगे y पॉजिटिव कहां से पता लगा? fx जब अंडर रूट के साथ होता है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो दिस इज द टेक्निक दैट यू विल यूज इन मैक्सिमम क्वेश्चंस. और स्टेप्स आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको सब क्वेश्चनों में यही करना है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. और ये y पॉजिटिव है, इस चीज को ध्यान में रख लेना. लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 4. कि लेट y इज इक्वल टू f of x is equal to x upon 1 plus x square. Again express x in terms of y, cross multiply. So this implies x square into y minus x plus y is equal to 0. Since x is real, therefore discriminant is greater than and equal to 0. b square mean 1 का square minus 4ac is greater than equal to 0. So this implies 1 minus 4y square is greater than equal to 0. 2y square minus 1 is less than equal to 0. This means y belongs to 1 by 2 and minus 1 by 2. तो y की वैल्यू माइनस 1 by 2 और 1 by 2 ये इस क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आ सकती है. लेकिन y की वैल्यू कभी 0 नहीं लेंगे, because when we will take y is equal to 0, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा y 0 लेने से? डिस्क्रिमिनेंट ही डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज y 0 लेने से ये चीज यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी. तो y will not be equal to 0. Therefore range of f belongs to minus 1 by 2 to 1 by 2 excluding 0. क्योंकि y की वैल्यू यहां 0 लेने से तो ये डिस्क्रिमिनेंट वाला क्राइटेरिया नहीं रहेगा. क्योंकि यहां से आप इस चीज को ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर मैं पूरा ही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाऊं
तो ये 1 माइनस 4y² अपॉन 2y होगा, क्योंकि y इसके साथ पड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां से ये पता लग रहा है कि y 0 नहीं होना चाहिए। अगर y 0 होगा तो x रियल नहीं होगा। मैंने क्या लिखा, x इज रियल। तो आप इस पॉइंट को पकड़ेंगे। नॉर्मली बच्चा 0 एक्सक्लूड करना भूल जाता है। ये इस क्वेश्चन में एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। लेट्स हैव ए क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, fx is equal to y लेट कर लेते हैं, is equal to 3 divided by 2 minus x square. Same express x in terms of y is equal to 3. So this implies minus x square y plus 2y minus 3 is equal to 0. X will be real if discriminant is greater than equal to 0. b की वैल्यू तो यहां पे है नहीं, बिकॉज b मीन कोफिशिएंट ऑफ x. b स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब माइनस y है, c का मतलब 2y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज 4y इंटू 2y माइनस 3 ग्रेटर देन 0. So this implies y is less than equal to 0 or y is greater than equal to 3/2. इसमें फिर हम यही आर्गुमेंट्स देंगे कि y की वैल्यूज 0 नहीं हो सकती, बिकॉज अगेन दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो इसका मतलब y के साथ मैं इज इक्वल टू का साइन हटा दूंगा. आप लिख सकते हैं y कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y है. तो फाइनल आंसर इज रेंज ऑफ f बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. एक्चुअली मैं इनके डोमेन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आई एम टेकिंग ओनली द रेंज. Question number 6, fx is equal to x square minus 9 divided by x minus 3. देखिए अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं तो x square minus 9 अपॉन x minus 3 आता है. प्रोवाइडेड x should not be equal to 3. इस बात का ध्यान में रखना चाहिए. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो x प्लस 3 आता है. अगर मैं x को एक्सप्रेस करता हूं तो x क्या आ जाएगा, y माइनस 3. बट x कैन नॉट बी 3 implies y कैन नॉट बी 6. जब x 3 नहीं होगा तो y 6 भी नहीं होगा. 3 पुट करके देख लो, 3 और 3 क्या आएगा 6. इसका मतलब इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ f बिलोंग्स टू रियल नंबर r माइनस 6 होगी. आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं y को यहाँ कैलकुलेट करूं तो x प्लस 3 आ रहा है क्योंकि फैक्टर बन गए. x की वैल्यू क्या है, अगर मैं 3 ले नहीं सकता, लेकिन अगर ले लेता हूं तो क्या आएगा, y की वैल्यू 6 आएगी. जब मैं 3 नहीं ले सकता तो y 6 भी नहीं आना चाहिए. इसलिए मैंने रेंज में से
6 माइनस कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और भी सिंपल है रेंज का, लेकिन डोमेन आपको हर क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली निकालना पड़ा। आई एम नॉट टेकिंग द डोमेन हियर बिकॉज दैट आई हैव कवर्ड ऑलरेडी। 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। अगर हम इसको सिंपली करते हैं तो y की वैल्यू खाली -1 आती है। इसका मतलब रेंज ऑफ f इसमें सिर्फ सिंगलटन सेट एक ही आंसर आएगा, दैट इज -1। इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, एंड यू नो दैट मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड 0 भी हो सकता है एट x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज द रेंज ऑफ f इन दिस केस इज 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इट मीन दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। तो रेंज ऑफ f दिस बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से ही करेंगे। इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो इसका जो मैं आंसर दे देता हूं, इसका जो रेंज आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 to 3 आएगी, एंड सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 11 को पिकअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं f(x) को y लेता हूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय y स्क्वायर बिकॉज एक्सप्रेस x in terms of y. So this implies x square is equal to 16 minus 1 by y square. That is 16y square minus 1 upon y. So this implies x is equal to under root of 16 minus y square minus 1 upon y. एक तो y 0 नहीं होना चाहिए। x will be real if 16y square minus 1 is greater than 0. 4y minus 1 is greater than into 4y plus 1 is greater than equal to 0. Y is less than minus 1 by 4 and y is greater than 1 by 4. The range of f belongs to minus infinity to minus 1 by 4 union 1 by 4 to infinity. 0 इसमें बीच में है ही नहीं, इसलिए आपकी रेंज इस क्वेश्चंस में यही रहेगी। मतलब हर क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट हम एक ही तरीके से हैंडल कर रहे हैं। क्लियर हो गए? तो y की वैल्यूज हम यहां पे, क्योंकि 16 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिए, तो रेंज आपका y नेगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी, क्योंकि f(x) जो है वैसे तो आपको यहाँ पे आंसर f(x) मींस y पॉजिटिव ही दिया हुआ है स्टेटमेंट्स में, अंडर रूट में नहीं है। तो पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब आपको नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दिस f(x) इज गिवन टू बी पॉजिटिव।
बट यहां से x नेगेटिव भी आ सकता है, इट मीन y नेगेटिव लेंगे तो x नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये आंसर ठीक है। इसको पिछले वाले से कंपेयर मत करना। क्वेश्चन नंबर 12, ये आप सेम अपने तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16. x is real for all y belongs to R, therefore the range of f is real number R. क्योंकि y स्क्वायर प्लस 16 हमेशा पॉजिटिव होगा, y की वैल्यू हम जीरो नेगेटिव कुछ भी लें, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जब आप क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। अभी मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव होता है। मॉड ऑफ x माइनस 2 इज पॉजिटिव, दैट इज लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। तो माइनस 1 बाय मॉड ऑफ x माइनस 2 lies between minus infinity and 0. So therefore 1 minus mod of x minus 2 lies between minus infinity to 1. So range of this will be minus infinity to 1. मतलब ये वो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिसमें आप ये छोटी छोटी चीजें इस तरीके से अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ये सोच के कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर विल बी दिस। क्वेश्चन नंबर 14 यहीं से स्टार्ट होगा ये सॉल्यूशन, बिकॉज यहां लिख देता हूं वी नो दैट। फिर जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी साइन, ये इंफिनिटी हो जाएगा माइनस 0, ये इज इक्वल टू इधर, फिर माइनस साइन इसको देख के लगाया, फिर प्लस 1 कर दिया तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये 12th क्लास के सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। अपॉन x माइनस 4। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं, अगर मैं कहता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो दिस इज x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। इफ आई से x इज लेस देन इक्वल टू 4, इट इज माइनस ऑफ दिस। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो रेंज ऑफ f क्लियर है कि दो ही एलिमेंट आएंगे, या -1 या 1। मतलब मोड को ब्रेक करके सीधा पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर मैं इसको y लेता हूं तो 1 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस दिस। डोमेन मैंने कल इसका डिस्कस कर लिया था कि रियल नंबर r माइनस इंटीजर होता है, कल के क्वेश्चन में ये था। साथ में ये भी बताया था कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा 0 और 1 में लाई करता है। 0 हो सकता है लेकिन 1 लाई नहीं करेगा। इसका मतलब जब हम अंडर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेंगे, वो भी 0 और 1 में ही लाई करेगा। क्लियर? लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा 1 माइनस दिस एंड अंडर रूट, तो ये लेस देन इक्वल लेस देन 1 ये इधर आ जाएगा और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब रेंज ऑफ f दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी।
क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। नेक्स्ट फाइंड द डोमेन एंड रेंज। देखिए थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन में कई बार स्टेटमेंट ऐसे आ जाती है, f इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स के डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के, मीन्स ये एफ एक्स है, इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आपने रेंज निकालनी है, पहले क्वेश्चन में तो खाली रेंज ही निकालनी है। इट मीन आप इसमें क्वेश्चन तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के। डोमेन तो इसका रियल नंबर आर होगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। सेम इसको y पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन y माइनस 1 प्लस y इज इक्वल टू 0। x is real, therefore discriminant is greater than and equal to 0। 0 b square minus 4 a into c is greater than equal to 0। This implies y into y minus 1 is less than equal to 0। This implies y lies between 0 and 1। अब इसकी वैल्यू 1 कभी भी नहीं होगी, तो 1 के ऊपर आप साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं डालेंगे। रीजन उसका दूसरा भी है, अगर आप यहां से x कैलकुलेट करते हैं 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 0 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई माइनस 1, दिस इंप्लाइज y कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए आपका ये आएगा। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f दिस बिलोंग्स टू 0 टू 1। 1 के ऊपर राउंड ब्रैकेट आएगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट में बार बार बोल रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिसमें मैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाता हूं, और इसमें मैं डिस्क्रिमिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac कहता हूं। तो ये क्वेश्चन 11th है या 12th है, दोनों क्लासेस में चलते हैं। ये बातें मैं हमेशा आपको बार बार कह देता हूं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जैक्टली सेम है, मीन्स आप डिग्री 2 की ही हम आपको रेंज निकलवा रहे हैं। मतलब हर क्लासेस का एक लेवल होता है, इसमें आपको इतना ही फॉलो करना होता है। मीन्स इसमें भी आप इस टाइप की टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स को आप 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस साइन एडजस्ट कर लिए। x इज रियल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4 a1 है इंटू सी इज ग्रेटर देन 0। y यहां पे भी 0 नहीं होना चाहिए, बात ध्यान में रख लेना, क्योंकि जब x स्क्वायर के साथ y होता तो हम लिख देते हैं y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो y इंटू वाई माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 के साथ हम इसमें इज इक्वल टू 4 ले सकते हैं। ग्रेटर देन 4 मीन्स आई कैन टेक इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर्स आप लिख लीजिए।
The final answer is b square. Okay, here is mistakes my, because कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है तो b 0 है. 0 माइनस 4, a का मतलब y है, c का मतलब y प्लस 1 is greater than equal to 0. This implies 4y into y minus 1 greater than 0. तो y is less than 0 and y is greater than equal to 1. तो y belongs to minus infinity to 0 union close interval 1 to infinity. The range of f belongs to ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक्स की थी जो मैंने कहा था कि अब आप इससे ऐसे कवर अप कर लीजिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है. देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन 3x है. अब यहां से डिनोमिनेटर तो कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि साइन 3x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी. इट मीन डोमेन तो इन क्वेश्चनों में बड़ा क्लियर होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर आर. रेंज के लिए आप क्या करेंगे, यहां से धीरे धीरे स्टार्ट करो. साइन 3x कहां लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में, दैट इज द रेंज ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब इसके साथ माइनस साइन है, इसका मतलब माइनस साइन 3x में इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करती है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा ये साइन चेंज किया हुआ, क्योंकि ये 1 इधर आ गया और ये 1 इधर चला गया. अब इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए. जब 2 ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा. स्टेटमेंट को देखते रहिए, करते रहिए. टेकिंग रेसिप्रोकल ले लीजिए. 1/2 माइनस साइन 3x कहां लाई करेगा, रेसिप्रोकल में इक्वालिटी साइन चेंज कर दिया. 3 इधर आके 1/3 हो जाएगा, ये इधर आके 1 हो जाएगा. तो आप कोई पूछेगा कि इसकी रेंज fx कहां लाई करेगा, आप कहेंगे 1 और 1/3 के बीच में लाई करेगा. तो रेंज ऑफ f दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/3 to 1. तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की रेंज नॉर्मली सिंपल्स होती हैं, इसमें ऐसी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहती. तो दिस इज ऑल अबाउट 18 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड इन द रेंज ऑफ द फंक्शंस. तो आई हैव कवर्ड मेनली ऑल टाइप ऑफ डोमेन, range and value of the functions. Now you need practice and complete all these questions.